morning class. Today is our English literature class and we will start with the chapter 6 Amma. Okay, so class, open up your books. Now, Amma. Amma lived in a hut in the garden that spread on both sides of the canal. She and her granddaughter Kalo assisted her son Finu, the gardener, in keeping the park clean. ठीक, एक लेडी के बारे में डिस्कस हो रहा है जिनको अम्मा कहते हैं. ठीक, अम्मा रहती थी गार्डन के साइड पे उनके एक हट पे अपनी ग्रैंड डॉटर कालो के साथ. ओके, हर ग्रैंड डॉटर कालो और उसको जो है वो अपने फादर मीन्स अम्मा के जो बेटे थे, ओके, अम्मा के सन फीनू को असिस्ट करती थी कालो. ओके, फीनू वुड survey the whole thing in the morning. He would get annoyed and then start cleaning up. Okay, फीनू गार्डनर था. वो पहले देखता था क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कुछ सही नहीं है गार्डन में, फिर अनॉय हो जाता था, उसके बाद सफाई करने लगता था. Together the family picked up leaf plates, fallen leaves, empty matchboxes, cigarette stubs and bits of paper. ये लोग सारी फैमिली अम्मा, फीनू एंड कालो सब मिलके सफाई करते थे गार्डन की. It could drive a man out of his wits. People simply came, spread a lot of litter and left. ठीक, तो गार्डन में रोज लोग बहुत कचरा फेंक जाते थे. What do these people think? They spread litter and go. Amma would start swearing in a quivering voice. अम्मा को गुस्सा आता था कि क्यों ये लोग इतना फैला देते हैं, क्यों कचरा इतना फेंकते हैं. In winter, when the flow of water in the canal was closed, the canal looked like a dry drain. The number of visitors also dwindled. ठीक, विंटर में जो कनाल का जो फ्लो था वो थोड़ा कम हो जाता था और वो एक ड्राई ड्रेन की तरह लगता था. ठीक, जो विजिटर्स से जो गार्डन में आते थे वो भी कम हो जाते थे. ठीक, dwindle मीन डिक्रीज इन नंबर. Only in the afternoons and evenings some people came, ate what they brought along and spoiled the garden. सिर्फ आफ्टरनून के टाइम पे लोग आते थे एंड दे यूज्ड टू स्पॉइल द गार्डन. ठीक, वही लीटर करते थे गार्डन में. Some played cards or just lazed around. They picked the leaf of flower plants or split canna leaf and crushed them with their fingertip. ठीक, ये सब जो विजिटर्स करते थे जो गार्डन में आते थे, ख़राब करते थे पूरा गार्डन. अम्मा हेटेड दीज पीपल. अम्मा क्योंकि सफाई करती थी उनको बहुत गुस्सा आता था. शी यूज्ड टू हेट दीज पीपल. Why can't they eat and drink at home? She would say. These rotten people come only to spoil the garden. Okay, Amma used to get very angry. Amma would offer Thanksgiving when the dry season ended. ठीक, जब सीज़न एंड होता था, ड्राई सीज़न मीन्स विंटर सीज़न, तो अम्मा एक थैंक्सगिविंग रखती थी. The canal would flow with snow water of the Chena. She liked the hustle and bustle in the garden. Summer elevated her mood. ठीक, जब समर आता था तो अम्मा खुश हो जाती थी. She would sit on the square stone slab placed under the शीशम tree on the water edge. Okay, शीशम का आप देखो, it is a kind of tree known as Indian rosewood that is native to the Indian subcontinent. Okay, it is a type of tree with the feet dipped in the cold water. Okay, जब समर आने लगता था तो अम्मा would feel good. Okay, and under the शीशम tree he used to place her knees inside the water of Chenab. She would hum some pahadi folk song. Folk songs होते and that too पहाड़ी. अम्मा वो गाती थी. Kalu wondered how Amma's voice became so sweet at such moments. कालो सोचती थी अम्मा की वॉइस जब वो गाती है वो इतनी अच्छी कैसे हो जाती है. If one were to hear her shouting and abusing, one would close one's ear. ठीक, जब वो गाती थी तो बहुत अच्छा गाती थी एंड जब वो चिल्लाती थी एंड गुस्सा करती थी तो बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाती थी. Those who faced her rage did not dare to talk to her again. ठीक, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था. The
ओल्ड हैग लुक्स एवरी इंच ऑफ विच। ठीक, तो लोग क्या कहते थे कि ये पूरी तरह से एक विच लगती है, चुड़ैल लगती है। शी कैन फ्लाई इन द एयर एंड गॉबल अप स्पैरोज लिवर। ये सब बातें लोग करते थे, ठीक है। शी चेंजेस herself into a witch at night. Then her eyes burn like lights and her hair is let loose. ये सब गॉसिप चलती थी, ठीक। Gossip of this kind was indulged in by children who come to the park to pass their afternoon. ठीक है, जो चिल्ड्रन वहाँ पे आते थे वो ये सब गॉसिप्स करते थे, बुरा बुरा बोलते थे अम्मा के बारे में। These children repeated like parrots what they heard from their mothers. ठीक है, अब चिल्ड्रन वही बोलेंगे जो उनके पेरेंट्स सिखाते हैं, ठीक है। तो ये उनकी मदर्स होती थी चिल्ड्रन के, और यही वो लोग रिपीट करते थे। Then such words traveled to children of petty vendors who played truant from school and came for a cold bath. ठीक, ये सब बातें बहुत ट्रैवल करती थी। The gossip gathered more flaws. Some children narrated stories heard from adults and those concocted by themselves. ठीक, जो और लोग बोलते थे उसको भी रिपीट करते थे, उसको गॉसिप बनाते थे और भी मिर्च मसाला डाल के उस इन स्टोरीज को बढ़ा देते थे। ठीक, कॉन्कोटेड का मीनिंग देखो, क्रिएटेड अ स्टोरी इन ऑर्डर टू डिसीव और मिसलेड समवन। ठीक है, और मिर्च मसाला डाल के वो गॉसिप बनाया जाता था। द लिसनर्स ट्रेम्बल्ड, देयर आइज वाइडेंड एज द गोस्ट हैड रियली डिसेंडेड ऑन देम। ये जो ये सब सुनते थे वो कहते अच्छा, बहुत बहुत स्ट्रेंज, बहुत वो कहते थे कि अरे बाप रे ऐसी बात होती है, ऐसे लोग सोचते थे। ठीक है, वन डे वेंटर शर्मा सन who visited the garden regularly suggested that if you see a ghost or a witch you should recite हनुमान मंत्र। ठीक है, एक दिन शर्मा जी का सन था, शर्मा जी वहीं के रहने वाले होंगे, उन्होंने सजेस्ट किया लोगों को, ठीक, जो वहाँ पे गार्डन में आते थे, कि इफ़ यू सी अ गोस्ट, कभी भी कोई गोस्ट चुड़ैल या भूत दिख जाए तो यू शुड रिसाइट हनुमान मंत्र। द व्हाट इज हनुमान मंत्र? इट इज look at the down of the page, incantations chanted for Hanuman, the deity renowned for his courage, power and faithful selfless service। ठीक, जो हनुमान इनके डाइटी होते हैं हिंदूज के, ये उनके लिए पढ़ा जाता था। तो दिस इज हनुमान मंत्र। विल द गोस्ट अलाउ यू टू डू दिस? आस्क्ड अ बॉय। तो बॉय ने पूछा एक कि इतना मतलब गोस्ट पढ़ने देगा? बी क्विक विद इट, हनुमान इज सो पावरफुल, रिप्लाइड जूनियर शर्मा। बोला कि हाँ आप जल्दी से पढ़ लेना, तो इट विल बी क्विक, ओके, एंड हनुमान इज वेरी पावरफुल। Then bit 2 added, if you have a piece of iron in your hand, no evil spirit or ghost can come near you, or you should have fire in your hand. It can be lighted cigarette also. The ghost will simply flee. ये सब बातें चली कैसे घोस्ट को भगा सकते हैं। And then all the boys started smoking and swearing iron bangles. ठीक, सब अपने सारे बॉयज बात करने लगे। It was decided that junior Sharma would teach them the mantra. ठीक, तो सब लोग ने बोला कि जो है शर्मा का जो सन है जूनियर शर्मा, he will teach हनुमान मंत्र to everyone every day. In order to purify themselves, they would jump into the canal. Then after coming out of the canal, they would sit in a circle around a mango tree. ठीक, रोज़ ये लोग कनाल में कूदते थे, ठीक, उसके बाद बाहर आते थे, and they would sit under the mango tree. Junior Sharma would pronounce the mantra like a school prayer and others would repeat it after him like a song. ठीक है, इस तरह से ये लोग हनुमान मंत्र याद कर रहे थे। One day, as soon as they began singing, they saw an old woman coming towards them with a twig in her hand. एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आ रही है। They started shivering with fright. They lighted their cigarettes and puffed at it while chanting the mantra. The cigarette puff made them hiccup and they were seized with the fear of the witch. Suddenly the old woman turned back and they heaved a sigh of relief.
ठीक। वो बूढ़ी औरत इनके पास है और लोग सब डर गए कि ये एक विच है, एक चुड़ैल है। ठीक, सब लोग मंत्र पढ़ने लगे। ठीक, और उसके बाद और लाइट ऑन कर लिया। ठीक, लाइट ऑफ लाइटर की, लाइटेड दे सिगरेट्स। ओके, सी हाउ पावरफुल द मंत्रा इज। उसके बाद वो वुमेन चली गई। सी हाउ पावरफुल द मंत्रा इज। द विच हैड कम सो क्लोज एंड येट शी टर्न बैक, दे टोल्ड ईच अदर। और क्योंकि वो ओल्ड वुमेन के पास आ गई थी और फिर वो चली गई, तो लोगों ने सोचा बिकॉज ऑफ दैट हनुमान मंत्रा विच चली गई। If you come across a puny ghost, catch him by his hair and lift him into the air. Never allow him to touch the ground. Then you have control over him and make him do whatever you want, advised Junior Sharma to his followers while puffing away. उसने बोला कि अभी कोई छोटा मोटा घोस्ट दिख जाए तो उसको बालों से पकड़ो, उसको एयर में लिफ्ट करो। ठीक, उसको कभी भी अलाउ नहीं करो, उसको ग्राउंड छूने को मत दो, उठा के हवा में ले लो उसको। ठीक, उसके बाद तुम्हें कंट्रोल मिल जाएगा। ओके, नाउ ये किसने समझाया? जूनियर शर्मा ने सबको समझाया। ओके ओके, सो टुडे विल कीप इट अप टू दिस पेज 70 और नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं 71 पेज से। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन मैसेज मी। ओके, गुड बाय क्लास।